to the first video of determinants. First, we should know what is a determinant. So every square matrix, whenever we talk about a square matrix, so you know what is a square matrix, children. This we have already studied. What is a square matrix? Any matrix which have same rows and columns, right? So the order can be written as n also, or it can be written as m also, right? Every square matrix can be associated with a number which can be either real or a complex, and that number is known as determinant of a square matrix. Now, determinant of a square matrix is denoted by the symbol mod A. This is the symbol. It is denoted by mod, but it is not read as modulus. Okay, it is just that it is known as the determinant of A. It is not read as modulus of A, but the symbol is same for both the determinant as well as the modulus. Okay, and the second thing to notice, it is only for a square matrix. Square matrix means jiske again rows and columns same hote hain. Now let's talk about how will you find the determinant of a 1 by 1 matrix, of a 2 by 2 matrix, and of a 3 by 3 matrix. When we talk about determinant of a 1 by 1 matrix or one order, 1 by 1 can also be said as 1. So that means there is only a single number. So the determinant of A is just the determinant of the matrix capital A is A. That means determinant A is equal to small a, whatever is the element present in a one order determinant, one order matrix. When we consider a matrix of order 2, or maybe you say 2 by 2, it is one and the same thing, right, children? So how will you evaluate? This is the standard or the skeleton matrix with the way it has been written. A11 stands for the element which is there in the first row, first column. A12 matlab first row, second column. A21 matlab second row, first column, and A22 means second row, second column. Now, if you have to find the determinant, it is written as, it is also denoted by the symbol DET of A, or obviously the way I told you, it is denoted by the sign of modulus, but it is not read as modulus, it is read as determinant of A. So determinant of A also written as delta, okay, in some of the books. Is how do you evaluate a 2 by 2 determinant? You just do the cross multiplication and put a negative sign. So A11 into A22 minus A21 into A12. So this is how you evaluate a 2 by 2 determinant. Cross multiplication with a minus sign in between. Okay, that is how we evaluate. A11 into A22 minus A21 into A12. Alright, children. So let's move ahead. This is the determinant of a 2 by 2 matrix or a 2 order matrix. Let's move ahead and learn how will you evaluate the determinant of a 3 by 3 matrix. Now, when we talk about determinant of a 3 by 3 matrix, children, or of order 3, so it can be expanded in 6 different ways. Kaise? You can expand it using rows. So rows can be bifurcated. You can expand using row 1, using row 2, and obviously using row 3. Similarly, you can expand it also using column. I'm sorry for the spellings. You can also evaluate it using columns. Okay, again, 3 ways: C1, C2, and C3. Let me show you how to evaluate. The only thing which you have to remember is, हमें actually क्या करना है? We just have to write the first element. Suppose let me show you by row 1 method, expanding using row 1. Okay. So we have to write the element which is present in the row 1, and we have to forget that row and forget the column which we are considering, and write down the next 4 elements which are there as a 2 by 2 matrix. Let me explain you with the help of example. And also I want you to make a note of the sign. It says that अगर -1 raised to power I plus j आएगा, into 2 by 2 determinant हो जाएगा. Okay, that is how the concept is.
बट ये आई एन जे चेक करो, अगर मैं 1 and 1 लेती हूँ तो 1 + 1 2 होता है, तो 2 is a even number. For even number cases it will be remaining the same. So when I'm expanding using R1, so A11 के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा. Why? Because when I'm using this formula -1 I plus j, तो 1 + 1 2 है, तो -1⁻², जो है वो पॉजिटिव हो जाता है. तो दैट इज वाई वी विल जस्ट हैव द, आई टोल्ड यू, यू फॉरगेट द रो एंड फॉरगेट द कॉलम, then whatever 4 elements are left, write down in a 2/2 determinant. अब आपको 2/2 determinant को solve करना तो आता ही है. The way I have just taught you in the previous slide, cross multiplication with a minus sign, right? That is how you will solve. Let's move ahead. When we write, let me erase this portion for you so that I can show you clearly. When I am talking about this element, children, रो 1 में 3 एलिमेंट है, तो मुझे कौन सा साइन डालना पड़ेगा? माइनस. क्यों माइनस डालना पड़ेगा? क्योंकि 1 + 2 करेंगे तो एक ऑड नंबर आता है, और -1 to ऑड नंबर इज ऑलवेज अ नेगेटिव. अगेन व्हेन आई एम राइटिंग A12 वाली पोजीशन, अगेन आई विल फॉरगेट द रो, फॉरगेट द कॉलम. 4 एलिमेंट्स बचे, उसे जिस ऑर्डर में बचे हैं उसी ऑर्डर में लिख दीजिए, जो जहां है, राइट? ऑल राइट. उसके बाद नेक्स्ट आई एम राइटिंग A13. अब आप खुद बता सकते हो 1 + 3 इज अ इवन नंबर, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा? प्लस का. और अगेन forget the row, forget the column. A21, A22, A31, A32. Now if I want the final answer to be calculated, how will you calculate that? Let me show you. So A11 into क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2/2 डिटर्मिनेंट निकालना मैंने सिखाया ही है. A22 into A33 minus A23 into A32. Again minus A12 bracket open, again cross multiply with a minus sign. A21 A33 minus A23 into A31. Again plus A13 bracket open, A21 A32 minus A31 A22. This is how you will expand. Now suppose करिए मुझे using रो 2 expand करना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं आपको जस्ट शॉर्टकट में समझा रही हूँ. ओके, अब आपको ये मेथड समझ में आया है, तो अब मैं शॉर्टकट में बताती हूँ. अगर मुझे A2 से करना है, तो मैं A2 का एलिमेंट A21 है, तो इसके साथ माइनस साइन, माइनस A21, और फिर 2/2 डिटर्मिनेंट. अगेन फॉरगेट द रो, फॉरगेट द कॉलम, तो क्या बचा? A12 A13, राइट, A32 और A33. अगेन आपको सॉल्व करना आता है. जब मैंने ये लिखना है तो प्लस A22, अगेन फॉरगेट द रो, फॉरगेट द रो, फॉरगेट द कॉलम. सो A11 A13 A31 A33. Then again when we have to write this, we will put a minus sign. A23 क्यों माइनस? क्योंकि 2 + 3 ऑड नंबर है. ऑड नंबर जो है -1 to the power ऑड नंबर इज नेगेटिव. अगेन फॉरगेट द रो, फॉरगेट द कॉलम. सो A11 A12 A31 A32. सिमिलरली आप रो 3 से भी ऐसे ही निकाल सकते हो. और रो 3 में कहाँ माइनस का साइन आएगा? सिर्फ इसके साथ. तो रो 2 में यहाँ और यहाँ दोनों माइनस आए थे. रो 3 में सिर्फ इस वाले टर्म के साथ नेगेटिव आएगा, और रो 1 में सिर्फ इस वाले टर्म के साथ नेगेटिव आएगा. दैट इज हाउ यू यूज इट, expand the determinant using row 1, row 2 और row 3. Now you can also do it using columns. Again clearly दिख रहा है. कॉलम से करेंगे, जैसे मैंने सपोज करो मैं आपको यूजिंग C1 बता रही हूँ, तो अगर C1 बता रही हूँ तो आपने A11 लिखा. अगेन फॉरगेट द रो एंड फॉरगेट द कॉलम. सो A22 A23 A32 और A33. अगेन आपको सॉल्व करना आता है, राइट?
अब मैंने जब सेकंड वाला एलिमेंट लिखा तो उसके साथ माइनस साइन आएगा चिल्ड्रन, यू हैव टू रिमेंबर दैट। मैंने आपको सर्कल भी करके दिखा दिया है कि जब भी आप ये एलिमेंट्स यूज करोगे, सर्कल, ब्लू सर्कल वाले एलिमेंट्स, उसके साथ हमेशा माइनस का साइन। तो मैंने कुछ ऐसा लर्न, डायमंड का शेप बनेगा तो माइनस साइन, नहीं तो आप एवेल्युएट भी कर सकते हो, राइट, क्लियरली विजिबल भी हो जाएगा। अगेन फॉरगेट द रो, फॉरगेट द कॉलम। सो A12, A13, A32 children and A33. Last plus A31. जब A, again forget the row, forget the column. So A12, A, okay, I think I've written this 2-1. Uh-oh. When I've written 2-1 children, we have to forget this and this. So A12, A13 and A32 and A33. It's correct. When I've written this, forget the row, forget the column, A11, A13 and A22, A23. Again, you know how to expand, right children? Similarly, you can do it using column 2. जब column 2 से करेंगे इसके साथ माइनस साइन, इसके साथ प्लस साइन, इसके साथ माइनस साइन। जब column 3 से expanding करोगे तो इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ again पॉजिटिव। So this is how you will expand. So there are 6 different ways to expand. You can do it by any method. आंसर जो है वो 6 के 6 मेथड से सेम आएगा, क्योंकि नंबर जो है, जो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ नंबर एसोसिएटेड होता है, डिटर्मिनेंट जिसे बोलते हैं जिस नंबर को, दैट इज ऑलवेज अ यूनिक नंबर if the matrix is fixed. Okay, let's move ahead. That is how I've told you the expansion. Now you have to remember these things children, that for making the calculation easier, आप हमेशा उस रो या उस कॉलम से एक्सपैंड करो जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है। और ये चीज आपको कभी नहीं भूलनी है कि जब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर रहे हो तो आपका जो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है जिसके हेल्प से आप एक्सपैंड कर रहे हो, उसमें या तो प्लस का साइन या माइनस का साइन आएगा। और मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया प्लस का साइन कहाँ आएगा, जब i प्लस जे इवन नंबर्स हैं तो साइन एलिमेंट का वही रहेगा, यानी कि ए आई जे का साइन सेम रहेगा। जब i प्लस जे करके अगर ऑड नंबर आता है तो एलिमेंट, जो भी आप एलिमेंट यूज कर रहे हो रो का या कॉलम का, उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। आप चेक करिए थर्ड पॉइंट, और बहुत क्लियर वैलिडिटी आपको दिख जाएगी। चेक करो ए और बी में क्या रिलेशन है। बी इज 1 1 2 0 एंड ए इज 2 2 4 0। तो कैन आई से जो ए है वो ट्वाइस ऑफ बी है, राइट चिल्ड्रन? ए जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ बी। इफ आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम अ मैट्रिक्स, आई हैव टू टेक 2 कॉमन फ्रॉम एवरी एलिमेंट, तो क्या बचेगा? 1 1 2 0, right? So A will be twice of B. If we calculate the determinant children, let's calculate the determinant. If I let me just move this block, this stylus, let me move it, and now let's do it. If I calculate the determinant of A, it will be 2 into 0 minus 4 into 2. सो यानी कि 0 माइनस 8, सो आंसर आया -8। डोंट गेट कंफ्यूज, ये मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, तो आंसर अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव ही रहेगा। डोंट मेक दैट स्टूपिड मिस्टेक। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉड्यूलस बी, यानी कि डिटर्मिनेंट बी, नॉट, डोंट से मॉड्यूलस, ओके, डिटर्मिनेंट बी। सो 1 into 0 minus 2 into 1, so this is 0 minus 2, so answer is -2, right children? So now you can very well see कि अगर मेरा जो A मैट्रिक्स में क्या रिलेशन था, A जो था वो n टाइम्स ऑफ B था, और जो मेरा डिटर्मिनेंट B आया है दैट इज, कैन आई से, जो भी आपका स्केलर है, यानी कि डिटर्मिनेंट जो आया है, कैन आई, आई एम सॉरी, not B, basically we will write down A. Can I say that determinant of A is
k to the power n times determinant b. why k to the power n times? चेक करो, जो 2 है वो 1 and 2 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, राइट चिल्ड्रन? सो इट इज 2 to the power n into determinant of b. 2 to the power 2, सॉरी, n is 2, दो रोज हैं, राइट? सो चेक करो, 2 2s are 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना आया था? -2. चेक करिए, आंसर -8 आ रहा है, यस आ रहा है. इसका मतलब ये है कि जब आप डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन लोगे तो या तो वो रो वाइज लिया जाएगा या कॉलम वाइज. अगर मैं लिखती हूँ कि डिटर्मिनेंट a इज सपोज 4, ओके, एंड आई वॉन्ट यू टू फाइंड a is suppose thrice of b and the order is suppose 3, स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट? डिटर्मिनेंट ए 4 गिवन है, राइट? और मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल के दिखाइए कि क्या होगा. तो कैसे निकालोगे आप? कैन आई यूज द फॉर्मूला एंड से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज k times n determinant of b, the formula which I have just derived for you people. अब चेक करो, डिटर्मिनेंट ऑफ a 4 गिवन है, k मतलब स्केलर मल्टीपल कौन सा है? स्केलर मल्टीपल अगेन मैं रिवाइज करवा देती हूँ, एनीथिंग विच इज नॉन जीरो, ठीक है? सो 3 to the power n, n क्या है? ऑर्डर, डिटर्मिनेंट b. So can I say that determinant b will be 4 divided by 3 raised to power 3? Right, children? So this is how you can calculate the determinant depending upon the relationship which is given between two matrices. अगर कोई दो matrices का कोई स्केलर मल्टीपल का रिलेशन गिवन है तो ये आंसर है. सपोज करिए इसी क्वेश्चन में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ b गिवन होता 4 और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना होता, द रिलेशन रिमेन्स द सेम, तो हम कैसे निकालते? कैन आई से डिटर्मिनेंट ऑफ a इज अगेन मल्टीपल k जो है वो 3 है, 3 to the power n, ऑर्डर है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b. सो डिटर्मिनेंट ऑफ b अब हमें कितना गिवन है? 4. सो जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो कितना होता? 3 to the power 3 इंटू 4. आपको ऑब्वियसली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी आप सबको आती ही हैं, राइट? सो बेस्ड ऑन दिस the next exercise is you can solve this exercise very clearly. check करो determinant कैसे निकालना है. this into this 2 by 2 है तो क्लियर है ये. 2 into -1 -5 into 4. similarly इसको कैसे निकालना है? cos into cos theta, that is cos square theta, minus of sin theta into minus sin theta, यानी कि minus sin square theta. तो cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है. सपोज करिए ये है, आपको ये शो करना है, ये तो बहुत ही इजी है. आप पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए जो कि क्या आएगा? 1 into 2 2 माइनस 4 2 8, यानी कि आंसर क्या आ गया? -6 आ गया, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया. तो आपको पता ही है, पहले तो सबसे पहले 2a निकालते हैं, क्या होगा? 2a क्या होगा? 2 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 2 2s are 4 again. So now if you want to calculate determinant of 2a तो कैसे निकालोगे? Multiply 2 into 4 minus 8 into 4. right? अगर सॉल्व करना है 4 2s are 8 minus, राइट, 32. अब चेक करिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -24, राइट? अगेन आप वेरीफाई भी कर सकते हो. कैसे? मैंने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया था. ट्वाइस ऑफ a विल बी 2 to the power, स्केलर मल्टीपल 2 है, 2 to the power n. n क्या है? ऑर्डर. ऑर्डर क्या है? 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा ऑलरेडी आ चुका था -6. So 2 2s are 4, 4 into -6, 6 4s are 24, so answer is -24. So या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से, मतलब अगर आप चाहो तो आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो कि आपने करेक्ट निकाला है या नहीं.
Similarly, you can do question number 4 also. Okay, don't bother about the exercise. I mean calculations, it's a very simple one. Why? Because कितनी सारी जीरोज है आप देख रहे हो, तो सबसे इजी एक्सपेंशन किससे है? या तो आप रो 1 यूज करो, सॉरी कॉलम 1 यूज करो, या आप कॉलम रो 3 यूज करो. सो आप किसी से भी एक्सपैंड कर सकते हो. चेक करो, अगर मैं यूजिंग रो 1 करूं तो पहला एलिमेंट 1 और 1 2 0 4. कैसे? फॉरगेट द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस, सो दिस, राइट. बट अगर मैं रो 1 से करूंगी तो मुझे एक और एलिमेंट खोलना पड़ेगा. तो रादर देन यूजिंग रो 1 आई कैन यूज C1 चिल्ड्रन. दैट्स मोर ईजियर. C1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, बाकी 2 जीरो है. तो चेक करो मेरा आंसर क्या आया. 1 इंटू 4 माइनस 0, तो आंसर 4 आया. चेक करो, अगर मैं इसे इससे भी कैलकुलेट करूंगी, यूजिंग R3 भी करूंगी. चेक करो R3 से मेरा आंसर क्या आएगा. अगेन मैंने याद कराया था कि सिर्फ डायमंड साइन में साइन चेंज होते हैं, तो 4 का साइन 4 ही रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. और उसके साथ क्या आ जाएगा? फॉरगेट द रो, फॉरगेट द कॉलम. 1 0 0 1. सो आंसर क्या आया? 4 इंटू 1. आंसर फिर 4 आ गया. तो आप किसी से भी इवेल्युएट करो, आंसर 4 ही आएगा, चाहे 6 मेथड से, C1 से, C2 से, C3 से एक्सपैंड करो, या रो 1 रो 2 रो 3 से एक्सपैंड करो, आंसर विल बी 4. दैट इज what you have to how to calculate determinant of A. तो अब obviously 27 into A तो आप कर ही सकते हो. 27 into determinant of A तो आपको करना आता ही है. और अगर इसका सेकेंड पार्ट 3 of A निकालना है, thrice of A अगेन आपको करना आता है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया. तो दिस इज 3 0 3 0 3 3 2 6 0 0 4 3 12. अगेन अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ 3A निकालोगे, अगेन आप यूजिंग सिर्फ कॉलम 1 ही निकाल लो, तो क्या आएगा? 3 इंटू ब्रैकेट में 3 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6. अब हम डायरेक्टली भी करना सीख सकते हैं. जब आपने 3 लिखा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और बाकी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं एक्सपैंडिंग कर रही हूँ यूजिंग कॉलम 1, बाकी 2 एलिमेंट 0 हैं. तो आप चेक कर सकते हो कि आपका 27 इंटू 4 क्या इक्वल आता है 3 इंटू 3 इंटू 12 के. सो यू कैन चेक इट वेरी वेरी क्लियरली. इज इट सेम और नॉट? इफ इट इज, ऑफ कोर्स इट विल बी सेम. यस. ऑल राइट, नाउ डिटर्मिनेंट एवेल्युएट करने अगेन आपको आते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ये सारा आप कर ही लोगे एवेल्युएशन. दिस इज 7th क्वेश्चन. बहुत सिंपल. डिटर्मिनेंट का साइन है, इसमें बच्चे ये गलती कर देते हैं. वो क्या करते हैं? 2 इज इक्वल टू 2x कर देते हैं. दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स चिल्ड्रन. This is the sign is of a modulus but it is read as determinant. तो ये गलती जो मैंने करी है, ये जो गलती है, ये नहीं करनी है. You can't say that 2 is equal to 2x. It is not a matrix. Determinant है तो आप कैसे लिखोगे? 2 into 1 minus 5 into 4. आंसर evaluate करो. Is equal to 2x into x minus 6 into 4. Now from this equation you can evaluate your determinant. Right? Similarly, second part also will be done same way. This also can be done in the same way. If it is x square children, so you have to remember x square जब भी कुछ नंबर आएगा, अगर सपोज करो 36 आ रहा है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी. डोंट राइट, दिस इज अनदर मिस्टेक विच हैपन्स. Don't write x is equal to only plus 6. Please, now you're in 12th standard, you should not make this silly mistakes. Okay, so this is all about the determinants, first exercise. We will continue the videos for the determinant chapter, but I want you to write any doubt in case you have one, okay, in the comments below. Thank you, children.